Hello everyone, how are you beta? I hope all are you fine. Welcome to my channel Care Vision Classes. In the last video of chapter Force and Pressure, we have discussed the definition of force, exploring force and some more examples of the force. Now in this video, we will discuss the two more important topics of the force. First one is effect of force. There are many effects of the force in the daily life we can observe. And second topic, the type of forces. We will discuss the types of force. There are two types of force, contact and non-contact force. So we will discuss these topics in the detail in this video. Please like, share, subscribe my channel. So let us discuss the topic first, that is called effects of force. Now let us discuss the effect of the force. There are 4 to 5 effects of the force. First, in your book, it is given that the force can change the state of motion. Here, he wants to change the state of motion, means any object which is at rest can, after applying the force, can be come in the motion. Any object which is already in the motion, by applying the force, can become at rest. After applying the force, we can increase or decrease the speed of an object. Also, after applying the force, we can change the direction of an object. Change the direction of an object. You can say that. So, in the effect of the force or the change the state of motion. So, let us discuss the first example, how the state of an object can be changed. Suppose you are sitting in a car and you are driving that car, that vehicle. So whenever you are accelerating the car, its speed will changes. Your car speed is at 40 km per hour, but after giving the acceleration to the car, your car speed will change up to 80 km per hour, suppose. So by applying the force by your foot, by your legs, on the accelerator, you are changing the speed of that car. Similarly, an example is given in your book, your NCERT book. In that example, a boy is playing with a tire, with a stick. एक बच्चा एक टायर के साथ स्टिक की हेल्प से खेल रहा है. Whenever he is applying the force with his hand to the tires, the speed of the tire and also the direction of the tire will changes. So now we can say that whenever force is applying on an object, then its speed can be changed by increasing or decreasing. अगर हम कहीं बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, सो ब्रेक भी अपने आप में एक फोर्स का काम कर रही है जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर देती है. सो आपको समझ में आया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. पहली चीज तो ये. सपोज नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ बस. Suppose a bus is standing, small bus, cab, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो रेस्ट में है, ठीक है. अब बुक lying on a table, a box lying on a table is at rest. वो किस में है? एक तरीके से रेस्ट में है, ठीक है. तो क्या होगा अगर आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, उस बुक पे, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, पुश या पुल कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगी? मोशन में. ऐसे ही बस खड़ी है, जैसे आपने बस को या व्हीकल को स्टार्ट किया, आपने एक्सेलरेट किया, तो वो किस में आ जाएगा? रेस्ट से मोशन में. ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, लेकिन आपने फोर्स लगाने पर ये किस में आ जाएगा? मोशन में हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है. हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. चलिए उसके अलावा देखिए, if any object already in motion after applying the force
इट कैन बी एट रेस्ट, इट कम टू एट रेस्ट। यदि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं या एक बॉल को सिंपल आपने किक किया है तो कुछ दूर जाने के बाद वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा, आपकी बुक के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज दे रखी है। जैसे एक्टिविटी 11.3 में आपकी बुक में बताया गया है कि यदि हम एक बॉल को मैं ऐसे पुश करूँ या नीचे फुटबॉल को हम ऐसे किक करते हैं या हॉकी प्लेयर किसी हॉकी स्टिक से हॉकी बॉल को, ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है। ठीक है, पुश कर रहे हैं तो हम जब इस बॉल को इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या कर रही है, ऐसे अपवर्ड मोशन कर रही है, तो इसकी स्पीड हो सकता है हम ज़्यादा तेजी से पुश कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी में भी बॉल का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्केल यूज किया है, आपने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका है तो बॉल इससे टकराकर ऐसे मूव कर पा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि वी कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, रेस्ट से मोशन में यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन या मोशन से रेस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं जब हम उन पर फोर्स लगाएं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए फोर्स लगाते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, ठीक है, पहला एग्जांपल बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें यही बता रखा है कि एक प्लेट में एक डो रखा हुआ है, ठीक है, गूंदा हुआ आटा है, उसे डो कहते हैं। ठीक है, जो गूंदा हुआ आटा नहीं होता, सिंपल होता है, उसे फ्लोर बोलते हैं हम। तो एक डो रखा हुआ है, जब आप इस डो पर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। मान लो ऐसे आपने कुछ बना दिया, जैसे हम बच्चों को दे देते हैं छोटे से आटे के टुकड़ा दे देते हैं हम, ठीक है, गूंदे हुए आटे का, उससे चिड़िया या कुछ भी ऐसे चीजें बनाते हैं, जैसे क्ले मॉडलिंग में होता है। ठीक है, क्ले के अंदर भी हम क्या करते हैं, उसमें उस पर फोर्स लगाकर उसे अलग अलग शेप्स में क्या कर देते हैं, हम उसे चेंज कर देते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी में ही दूसरी चीजें जो आपको दी गई है, एक्टिविटी के अंदर ही मैं आपको बता रही हूँ, एक्टिविटी के थ्रू वो एक्टिविटी आपको फिल करनी है, इस तरीके से दी गई है। जब हम किसी सोफा या फोम वाली चीज पे बैठते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। ठीक है, सोफा पे अगर आप बैठे हो या फोम वाले गद्दे पे बैठते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, प्रेस की शेप चेंज हो जाती है। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज को कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपको यहाँ पे अच्छे से। तो अगर हम इन सारी चीजों को कंक्लूड करें तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी बुक में भी रिजल्ट करके या कंक्लूड करके दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये पेपर में एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स या डिफाइन द फोर्स, और उसी में इंक्लूड करता है राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एज ए आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट की फॉर्म में है तो आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज जैसे भी आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है फोर्स कैन वर्ड यहाँ पे इसमें यूज किया गया है, जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स लगाओ तो भाई उसकी शेप साइज डायरेक्शन चेंज हो। जैसे मैं इस पेन पर फोर्स लगाऊंगी तो शेप चेंज नहीं हो रही, तो पॉसिबिलिटीज होती है कि मैक्सिमम टाइम पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फोर्स कैन चेंज द, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे फोर्स लगाने से वो मोशन में आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स आपको आपकी बुक में शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, जिनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है मैंने, उसको अच्छे से ही पढ़ना है, ऐसे पॉइंट्स बना के ही लिखना है आपको, तभी कोई भी टीचर या कोई भी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे और उससे रिलेटेड ओलंपियाड में भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के भी टू फर्दर टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी टाइप्स है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा हमें ये डिटेल में पढ़ने हैं। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कांटेक्ट में हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ठीक है। आपका चैप्टर भी नेक्स्ट है फ्रिक्शन के ऊपर, तो आई थिंक वो भी आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, आपने भी पहले भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हम भी अपनी वीडियोस में उसको पढ़ाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो आप ये फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए बेटा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। जैसे कोई भी बुक टेबल पे रखी है, तो क्या आप उन्हें बिना टच करे उठा सकते हो? नहीं, ठीक है। इसका मतलब यदि हमें उसे पुश या पुल करना है बुक को या मूव कराना है, तो हमें उसको टच करना ही पड़ेगा। हमने ये टॉपिक इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस में भी पढ़ा था कि फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन हो, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स व्हिच एक्ट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स इज दैट इज कॉज्ड by the action of the muscles in the body is called muscular force। ऐसी फोर्सेस जो हमारे मसल्स के एक्शन के थ्रू ही अप्लाई हो रही है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स जैसे टू पुल ए बकेट, मतलब पानी की बाल्टी जो भरी हुई है उसे कुएं में से ऐसे पुल करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें हाथों से, मसल से, हमारी मसल से क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। साइकिल चलाते हैं तो पेडलिंग करते हैं हम, तो भी फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती है, मस्कुलर फोर्स। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया जाता है, यानी कि सामान को ढोने के लिए एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। जैसे एनिमल आर आल्सो मेक द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज लाइक ऑक्सेस, ठीक है। बैलों का, बैलगाड़ी का हम यूज करते हैं, तो वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। डोंकीज का यूज किया जाता है, तो एनिमल्स फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर या डेली लाइफ के अंदर, तो वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं। हॉर्सेस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका अलग अलग तरीकों से उनकी मसल्स, मतलब वो अपने काम को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स वो होती है जो मसल्स का यूज करें, और मसल्स के लिए हम आपको क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जिम में डंबल वगैरह को उठाते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करिए जल्दी से, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। A force which opposes the relative motion between the two surface in contact। जब कोई दो सरफेस कांटेक्ट में होती है और उनके रिलेटिव मोशन को कोई भी ऐसी फोर्स जो क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे देखो, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये दूसरी सरफेस है, अगर ये इस पर रोल कर रही है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये क्या हुई? स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको शो किया है कि अगर आप एक बॉल को किक करते हो, कुछ टाइम के बाद वो बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्राउंड है, ये दोनों कांटेक्ट में है। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी काम करती है जब वो दोनों कांटेक्ट में हो, सबसे पहली ये कंडीशन है। उसके अलावा जो बॉल होती है और बॉल और ग्राउंड के बीच में एक अपोजिंग फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। उस इनविजिबल अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वॉक करने के लिए या मैं बोर्ड पे, या आप अगर अपनी नोटबुक में लिखते हैं पेन या पेंसिल की हेल्प से, तो ये सारी चीजें भी फ्रिक्शन के कारण हो पा रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसी फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होता है। जैसे सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स।
दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर दो मैग्नेट को पास में लाए और उनके सेम पोल एक साथ हो, या तो नॉर्थ हो या साउथ हो, तो उनके बीच में जो फोर्स इंटरेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगी और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये दो अपोजिट मैग्नेट को पास लेके आओगे तो टच करेंगे, टच करने पर जो फोर्स आपको महसूस होगी एक तरीके से, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। लेकिन जब से अच्छी चीज होती है हम रिपल्सिव नेचर को चेक करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ऐसी फोर्स, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर कर रही हूँ, मतलब ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन चला रही हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इनमें भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टच या नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे जितने भी हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सारी सैटेलाइट्स, प्लैनेट, सन, वो एक मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक दूसरे के अंदर एक अट्रैक्शन को, रिपल्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स को महसूस करते हैं, एक तरीके से फील करते हैं, या उनके बीच में फोर्स लग रही है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ के कारण या पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स लग रही है एक तरीके से, तो हम नॉर्मली अर्थ पे हम बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से मैं सिंपल वे में बता रही हूँ आपको, ठीक है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं, अब आप कहोगे कि मैम रेस्ट में तो फोर्स कैसे लग रही है, ठीक है लेकिन फोर्स लगती है उसके अंदर। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body, जब दो बॉडी को रब किया जाता है, जैसे दो न्यूट्रल बॉडीज है, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है, तो जब इन दोनों को हमने रब किया तो हाथ में हीट प्रोड्यूस हुई। ये तो फ्रिक्शन से कारण हुई है हीट प्रोड्यूस, लेकिन इनके अंदर क्या है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन भी अपने आप में एक फोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, उसके अलावा मैं आपको जो जनरल मेन एग्जांपल है वो समझाती हूँ कि जब हम किसी वूल को, ठीक है, किसी कपड़े को, वूल को ग्लास रोड से रब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो एक बॉडी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो अपना पूरे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो ट्रांसफर करता है उसके वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का भंडार बढ़ जाता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे हम बचपन में एक एक्टिविटी करते थे कि हम स्केल को या कोन को ड्राई हेयर पे रब करोगे और पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन वो पेपर क्या होते थे, टच नहीं करते थे, दूर से अट्रैक्ट होते थे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी। तो उनके बीच में भी कौन सी फोर्स बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखो, सर्दियों के अंदर हम ब्लैंकेट्स, जो गर्म रजाई या चादर, सॉरी वैसी ब्लैंकेट्स होती है, ठीक है, फोम वाली, उसमें वूलन वाली, वो हम ओढ़ते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी से रब करते हैं तो कभी कभी स्पार्क प्रोड्यूस होता है, या नायलॉन के कपड़े हम पहनते हैं तो उनके बीच में, ठीक है, नाइट सूट वगैरह नायलॉन के आते हैं, तो उनके बीच में भी एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो वो स्पार्क भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डेवलप करता है, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी से रब की जाती है या उसके कॉन्टैक्ट में आती है, मतलब उसमें इन्फ्लुएंस देती है उसको एक तरीके से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे होमवर्क या आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं। नाउ यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चन, और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको डाला सिंपल सा, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, दोनों वीडियोस में आपको लिंक करके देखना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसको प्रूव करो या उसका स्टेटमेंट दो, एक्सप्लेन करो। लिस्ट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, आज की वीडियो में पढ़ा हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, उनमें से कोई भी 2 इफेक्ट्स आपको बताने हैं।
टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दे सकते हो या कॉन्टैक्ट। इस तरह के क्वेश्चन मैंने जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं कि आपको स्टेटमेंट में 2 नंबर में 3 नंबर में किस तरीके से उनको लिखना है। राइट द एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द फोर्स। फोर्स के 2 डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताने हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है, अच्छे से पढ़ना है, हेल्दी रहना है, ठीक है बेटा। अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के साथ मिलकर छुट्टियों को एंजॉय करना है, छुट्टियां खत्म होने वाली है, तो प्लीज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।